بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، لباس کے احکام سے متعلق احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ لباس ہی میں شمار کیا جاتا ہے جوتے اور چپل کو بھی، تو اس کے تعلق سے بھی کچھ حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کے بارے میں اور اسی طریقے سے چپل اور جوتے سے متعلق جو اسلامی کچھ ہدایات ہیں وہ آج آپ کے سامنے درس میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سے متعلق۔ تو پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے ایک پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان نعلاہ لہما قبالان۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، آپ کے جوتے، جوتے مطلب وہی دو ہوتے ہیں نا، یہ جوڑا ہوتا ہے، پیر جو آپ کہتے ہیں، تو اس لیے ہم جوتے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا اس کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ جوتے رہتے ہوں گے، اس لحاظ سے اس کا ہم جمع کا صیغہ نہیں استعمال کر رہے ہیں، بلکہ چونکہ یہ کبھی بھی ہوگا تو پورا ایک جوڑا ہوگا، یعنی دونوں پیر کا جوتا ہوگا، تو اس لحاظ سے جوتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا جو جوتا تھا اس کے دو تسمے تھے۔ تو قبالہ نے یہ لفظ آتا ہے اردو میں، ہم اس کو تسمہ کہتے ہیں، اردو والے تسمہ کہتے ہیں۔ عام طریقے سے اب جوتوں میں یہ سب رہتا نہیں ہے، لیکن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ہوا کرتی تھی، اور بہت قریب زمانے میں بھی یہ رہا ہے۔ میں ایسا نہیں ہے کہ اب بھی یہ چیز بالکل نہیں پائی جاتی ہے، اور ابھی بھی ہے، لیکن بہت کم جوتوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب تو نئے نئے فیشن ہیں، الگ الگ انداز کے جوتے ہوتے ہیں، اور جوتوں کا الگ الگ انداز ہو چکا ہے ابھی۔ جوتا پہننا اور ننگے پیر رہنا، یہ ایک مسئلہ ہے، پہلے آپ کے سامنے اس کے بارے میں پیش کر دوں۔ جوتا پیر میں ڈالنا یا پیر میں پہننا اب آج کل یہ تہذیب کی ایک علامت بن گیا ہے، اور جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ بہرحال جوتا یا چپل تو پہنتا ہی پہنتا ہے۔
बगैर चप्पल या जूते के अगर आपसे कहा जाए कि जरा बाहर निकलो, किसी काम के लिए जाओ, यहाँ तक कि अब तो घर के अंदर भी, तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। बड़ा अजीब सा तस्वुर आता है कि भाई कैसा लगेगा बगैर जूते या बगैर चप्पल के चलते हुए। तो पहले ये कोई मायूब चीज नहीं होती थी, और जब आदमी के पास चप्पल ना हो, जूता ना हो, तो ऐसे ही जो है नंगे पैर चला करता था। और हमारे इस मुल्क में तो नंगे पैर रहने का एक मजहबी तस्वुर भी रहा है, और अभी भी पाया जाता है। और नंगे पैर चलने का या नंगे पैर रहने का एक मजहबी तस्वुर भी रहा है। लेकिन इस्लामी तस्वुर ऐसा कुछ नहीं है इसका। और जूता कब से है, कब से ये चीज चल रही है, पैरों में कोई चीज पहनना, असल में ये मकसद है। जूते के लफ्ज से कोई ये मत तस्वुर कीजिएगा कि आज का जो जूता है, जो शू जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल इस शक्ल में कभी रहा हो पहले भी और शुरू से भी, तो ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। बस कोई ऐसी चीज जो पैरों में पहनी जाती रही हो। तो इसके बारे में तो इमाम इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अन्नालु लिबासुल अंबिया, कि ये नाल, ये जूते, ये अंबिया का लिबास है। असल इसको भी लिबास में ही शुमार करते हैं, इसलिए पहनने में ही उसको शुमार करते हैं। इसीलिए लिबास के मसाइल में इसका जिक्र आपके सामने चल रहा है। तो इब्नुल अरबी ने, ये बहुत मशहूर मालिकी एक जो है आलिम गुजरे हुए हैं, और फिक़्ह मालिकी से इनका ताल्लुक है। और जामे तिरमिजी की इन्होंने शरह लिखी है, इनकी शरह बहुत मशहूर है जामे तिरमिजी की। तो उन्होंने क्या लिखा है कि अन्नालु लिबासुल अंबिया, के जूते, जूता जो है ना, ये अंबिया का लिबास है। यानी गोया कि इनका ये समझ में आ रहा है कि ये कोई आज की चीज नहीं, बल्कि ये बहुत पहले से चीज चली आ रही है। अब इन्होंने अंबिया का लिबास कहा, तो अब आदम अलैहिस्सलाम को भी अगर उसमें शामिल किया हो, क्योंकि वो भी नबी थे, तब तो आप ये समझ लीजिए कि इनके कौल के लिहाज से ये चीज आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चली आ रही है। तो चाहे जब से भी हो, तो पैर में चप्पल पहनना, पैर में कुछ पहन के रखना, ये एक तहजीब की अलामत हो जाती है, और एक जरूरत है। जैसे लिबास है, हम कपड़ा जो पहनते हैं ना, तो आज के इस दौर में ये कपड़े जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ एक जीनत नहीं है, ये सिर्फ हमारे बदन को ढांपने का एक जरिया नहीं है ये, बल्कि अब ये कपड़ा जो हमारे बदन को छुपाता है, ये इतने फैशनों के साथ जुड़ गया है कि अब इसकी कुछ और ही हैसियत हो गई है। वरना तो आम तरीके से जो लिबास है वो इंसानी जरूरत इस लिहाज से है कि वो उसको सर्दी गर्मी से बचाता है। ये कपड़ा उसे उसकी शर्मगाह को छुपाने के लिए जरूरी है, और बगैर इसके वो बाहर निकलने को ये खिलाफे अदब समझता है। और समाज और सोसाइटी के जो है कि जो मसाइल होते हैं या उससे मुताल्लिक जो चीजें होती हैं, उस समाज और सोसाइटी के उसके आदाब के खिलाफ समझता है इसको। तो ये जैसे इसका मसला कपड़े का भी है, भाई कपड़ा जो है एक जमाना में ऐसा भी रहा है कि जो भी मिल गया, जिससे भी आप अपनी शर्मगाह को छुपा लीजिए, वो आपका लिबास है, आपका कपड़ा है। जो भी जो है आपके बदन को सर्दी और गर्मी से बचाए, वो आपका लिबास है, आपका कपड़ा है। तो यही जो है मसला जूते का भी था, चप्पल का, जूते का, जो लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर ले, कि एक जरूरत थी ये पैर की हिफाजत के लिए। रास्ता चलते हुए पैर में कहीं कांटे न चुभ जाए, कोई शीशा वगैरह न चुभ जाए,
और कोई इस तरह की चीजें जो जमीन में पड़ी रहती हैं और आदमी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो पैर के बचाव का एक जरिया है ये जूता, चप्पल। तो ये फैशन के तौर पर नहीं इस्तेमाल होता रहा है, पहले की बात कर रहा हूं। अभी तो ये भी जो है फैशन की जद में आ गया, और इसमें भी बहुत तरह के फैशन इसके साथ जुड़ गए हैं। तो ये पैर की हिफाजत का भी एक जरिया है। तो बहुत से लोग जूता इसलिए पहनते रहते हैं, चप्पल और जूते में जूते का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि पैर, खास तरीके से जो सर्दी के मौसम में पैर फट जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है, तो उस सब से बचाव के लिए जूता बहुत अहम है। अगर आप बराबर जूता पहने सॉक्स के साथ, तो कभी ये शिकायत नहीं रहेगी कि पैर फट गया, और पैर बहुत ही अच्छा और खूबसूरत रहता है अगर इसकी पाबंदी की जाती है। और देखने में भी अगर आप सॉक्स के साथ इसको पहने रहते हैं ना, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। तो अदब और तहजीब से भी ये चीज अब जुड़ गई है। तो एक हिफाजत का भी जरिया है। रास्ता चलते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने ऊंट को पैदाइशी तौर पर ऐसा बना दिया है, उसके पैर को, कि वो सर्दी हो गर्मी हो, जब जो है रेत में चलता है ना, तो पैर जलेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको पैदाइशी तौर पर ऐसा जूता पहना दिया है कि उससे ऊंट का पैर उस पर, रेत पर, जब गर्म रेत हो तब भी जलता नहीं है। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है, जो ऊंट के बारे में अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। ये लोग क्यों नहीं देखते, क्या ये लोग देखते नहीं है ऊंट की तरफ कि ऊंट को कैसे पैदा किया गया है। तो ये एक पैदाइशी तौर पर उसके अंदर रखा गया है, हम इंसानों के लिए नहीं रखा गया है। तो हम अगर जब जूता पहन लेते हैं, तो फिर हमारी पैर की हिफाजत इससे भी होती है कि जब गर्म जमीन हो, तपती हुई जमीन है, तो हमारे पैर को उससे नुकसान नहीं होगा। तो उसके लिए जूता एक जरूरत है। सर्दी के लिए भी कहा हमने कि सर्दी के मौसम में भी अब जो है चप्पल और जूता हमारी एक जरूरत बन गया। वो कैसे? अभी हम देख रहे हैं कि टाइल्स वगैरह जो लगाए जाते हैं या मार्बल वगैरह, तो बहुत ठंडे हो जाते हैं। जहाँ कालीन वगैरह बिछी हो तो वहां तो कोई मसला नहीं, लेकिन जहाँ नहीं है ऐसा कुछ सिस्टम, तो सर्दी के मौसम में अगर पैर रख करके चलते हैं ना इसके ऊपर, मार्बल, ग्रेनाइट, या जो है कहिए ये टाइल्स भी होते हैं ऐसे, तो सीधा जो है सर्दी का असर आपके ऊपर आता है पैर के जरिए से। है ये जो है पूरा जिस्म का आपस में जोड़ है, ताल्लुक है ना। तो जो पैर के तलवे होते हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक आपके दिमाग की नसों से होता है। वहां कोई ठंडी चीज आप रखें तो ठंडक दिमाग तक पहुंचती है। ये तलवे जो पैर के हैं नीचे के, वो रख करके देखिए कभी आप। तो पिछले जमाने में एक रिवाज था लोगों का कि वहां मेहंदी लगाते थे तलवे पर, वो पैर के अंदर, मर्द भी लगा लेते थे। औरतें तो वैसे सिर्फ जीनत के लिए लगाती है ना, तो वो ऊपर भी लगाती हैं, नीचे भी साइड में लगाती हैं। लेकिन ये एक सिर्फ तलवे के ऊपर जो नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अंदर पड़ता है। एक हिस्सा जो है पैर का कुछ इस तरह से रहता है, वो बीच में थोड़ा खाली सा हिस्सा रहता है, और वहीं पे लगा लेते थे। और वहां आप लगाएं तो चूंकि ये मेहंदी, जो असल मेहंदी होती है ना पत्तों वाली, वो बहुत ठंडी होती है, पहले भी मैंने बताया था आपको। वहां आप लगा दीजिए, ठंडक का असर आपके दिमाग तक आएगा। तो दिमाग बहुत गर्म रहता हो तो वहां पर मेहंदी लगाते रहिए, तो दिमाग बिल्कुल ठंडा आ जाएगा जो। तो ये जब पैर रखते हैं जमीन पर, ठंडी जमीन पर, तो इसका सीधा असर आपके ऊपर आता है, और आपको जुकाम होगा, नजला होगा, खांसी होगी, मुख्तलिफ जो है शिकायतें रहेंगी आपको। बहुत आसान सा इलाज है कि आप चप्पल पहन के रहिए।
वो जमीन की जो ठंडक है तो इस तरह से आपके अंदर मुंतकिल नहीं होगी। तो बता रहा था आपको कि चप्पल, ये जूता, ये क्या है, हमारे जिस्म की जो है हिफाजत का एक बड़ा अहम जरिया है ये। तो रास्ते में भी हमारी हिफाजत करता है ये, यानी हमारे लिए हिफाजत, और हमारी हिफाजत उसके जरिए से हो जाती है। और इसी तरह से सर्दी गर्मी से भी बचाव का, हमारे पैर की खूबसूरती का भी, पैर की खूबसूरती को बाकी रखने के लिए भी ये चप्पल और ये जूते, इसका बड़ा अहम किरदार है। कभी मैं ये सब चीजें जो है आपको बता रहा हूँ, चूंकि अब जूते का बयान शुरू हुआ है तो ये सब चीजें भी जानना चाहिए। तो बाज लोगों के पैर देखेंगे कि आप बड़े खूबसूरत होते, छोटे, बहुत लंबे चौड़े नहीं होते, तो छोटे रहते हैं तो अच्छे लगते हैं ना दिखने में, खूबसूरत से पैर। तो उसकी एक ये है कि आप इसके लिए एक ट्रिक है, अपने बच्चों पर आप यूज कीजिए उसको, कि अगर आप उनको जूता पहनाते रहेंगे छोटे से, तो बच्चे जो पैर जो है ना बहुत बड़े नहीं होते हैं, और भद्दे किस्म के पैर नहीं होते, बड़े अच्छे सिडोल किस्म के पैर रहते हैं ये, और देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो ये जूते से ये चीज हो, जूता जो, चप्पल नहीं, जूता जो पैर को जो है एक तरह से बांध के रखता है, वो एक खास साइज में बांध के रखता है वो जूता, ये उसका फायदा होता है। तो उस भद्दे नहीं होते उसकी वजह से पैर जो है, और देखने में अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। एक मुल्क के बारे में जो है हमने ये बात सुनी थी कि वहाँ के लोगों के पैर छोटे और बड़े खूबसूरत होते हैं, तो उसके बारे में तफसील ये जिक्र की गई थी कि वहाँ जूते बचपन से जो है उसका बड़ा एहतमाम कराया जाता है बच्चों को। तो इस तरह से एक खास साइज तक ही वो पैर बढ़ते हैं, क्योंकि जूते के अंदर जितनी जो है नंबर का आप जूता इस्तेमाल करते जाएंगे, थोड़े थोड़े तो पैर बढ़ने हैं उम्र के लिहाज से, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ के भद्दे किस्म के पैर नहीं होते उसमें। तो बात ये जूतों की चल रही थी। जूते जो है वो पैरों की जीनत है, और पैरों की हिफाजत का एक जरिया भी है, और इंसान की शख्सियत से भी वो जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। कि अगर पैर में जो है जूते ना हो, चप्पल ना हो, तो क्या समझते हैं लोग कि आदमी बड़ा गैर मुहज्जब है, और जरा बद्दू किस्म का है, या उजड़ किस्म का है, देहाती है, इस तरह का तस्वुर आता है। आपको हदीस जिब्राइल याद दिलाऊं। हदीस जिब्राइल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामतों में इस बात का जिक्र किया है कि अंतरल हुफातल औरात रिया अन्नास, और रियाल इबिली, रिवायतों के लिहाज से, या रियाल बोह में मुख्तलिफ रिवायतें, कि तुम देखोगे उनको जो नंगे पैर रहते थे। हुफात इसको कहते हैं नंगे पैर अरबी जबान में, हाफिन की जमा है हुफात। इसके माने होते हैं जिनके पैर में कुछ भी ना हो, न चप्पल न जूता, कोई चीज, वो नंगे पैर रहने का अके आदी है। औरात, नंगे बदन, मतलब ये कि बस शर्मगाह तो ठीक है, वहां तक कपड़ा रख लिया है, लेकिन बकिया बदन का ये जिस्म का ऊपर का हिस्सा ये ऐसे ही जो है नंगे घूमते रहते हैं। देखा होगा अपने देहातों वगैरह में लोगों को इस तरह से। तो कहा कि ये नंग धड़ंग आदमी जो है, हाँ, जो ऊंटों के चरवाहे हैं, इनको आप देखोगे कि ये लोगों के बादशाह बन जाए, लोगों का के बादशाह बन जाएंगे। और एक रिवायत के लिहाज से देखोगे तुम इनको कि ये लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की और फख्र जताने की कोशिश करेंगे। यानी वो लोग ऐसा करेंगे, कोशिश करना ही नहीं है, ऐसा करेंगे। तो उसमें भी क्या है, वो बद्दुओं का जो तस्वुर पेश किया है हदीस में, वो यही है कि वो नंगे पैर रहते हैं। तो ये एक देहातीपन उसके अंदर झलकता है कि आदमी पैर में चप्पल ना पहने या जूता ना पहने।
और पैर फिर उसके बड़े जो है अजीब अंदाज के होते हैं और अच्छे नहीं लगते। खुद मेरे साथ भी ऐसा होता है असल, कि ये सर्दी का मौसम जब आता है खास तरीके से तो, और बेंगलुरु में तो अक्सर मौसम ऐसे ही रहता है, बरसात में भी तकरीबन ठंड ही रहती है, और जाड़े के मौसम में तो थोड़ी बहुत ठंड रहती है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इतना जो है ठंड, ये पैर को खराब करने के लिए ये मौसम काफी होता है, काफी जो है पैर। लेकिन वही वो सॉक्स पहनना, फिर जब जूते पहनना, ये मुझे बहुत इसमें लगता है कि बहुत टाइम चला जाता है, तो मैं यहाँ ज्यादा एहतमाम नहीं कर पाता उसका, और पैर हमेशा खराब रहते हैं इसी वजह से। तो ये एक चीज है। जमीन में कहीं भी कभी भी कीचड़ वगैरह का, बारिश वगैरह हो गई तो भी बड़ा मसला रहता है। तो चप्पल या जूते जो है उसके पैर की हिफाजत के लिए यहाँ पर भी काम आते हैं। तो ये तरीका रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, कि आप जूते पहनते थे, और आपके जूते का तस्मा भी होता था। ये सहाबा ने जिक्र किया, उसमें खास तरीके से अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हो ने, जो आपके बड़े खास खादिम थे, वो इसका जिक्र करते हैं कि आप जूते पहनते थे। ऐसा भी हुआ है कि जूता पहनते थे और जूता पहन करके मस्जिद में भी दाखिल होते थे, और जूते में आपने नमाज भी पढ़ाई है, और जूता पहने पहने ही वजू भी किया है, ऐसा भी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सब तरीका रहा, हदीसों में ये सब चीजें आई हुई है। तो रास्ता चलते हुए पैर की हिफाजत के लिए ये जूते एक जरिया है, उसकी एक मिसाल पेश कर रहा हूँ हदीस से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि आप इमामत करा रहे थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप करके आपको बताया कि आपके पैर में नजासत लगी हुई है, यानी गंदी चीज। और नजासत अगर कपड़े पर भी हो, हमारे जिस्म पर के अलावा कपड़े पर भी हो ना, तब भी नमाज नहीं होती है। तो आपने जो है नमाज की हालत में ही जूता निकाल दिया। तो यही उसका तरीका है बहरहाल। अगर नमाज की हालत में ऐसे कुछ हमको ऐसा कुछ मालूम होता है, तो नमाज को कंटिन्यू करते हुए बस यही करना होता है कि जहां नजासत है ना, उस हिस्से को हम जिस्म से निकाल दे। अगर उसका छुपाना नमाज में जरूरी नहीं है, तो ऊपर से हमने कमीज निकाल दिया, नीचे बनियान पहने रहते हैं, तब भी उसमें नमाज तो हो ही जाएगी। अगर मालूम हुआ कि भाई कमीज में कहीं नजासत लगी हुई है, तो यहाँ जूते की बात थी। तो जूते का एक फायदा ये भी है कि रास्ता चलते हुए अगर कहीं कोई नजासत है, तो वो चप्पल या जूते में ही रह जाएगी, जिस्म का हिस्सा उससे मुतासिर नहीं होगा। ये भी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम में से कोई आदमी मस्जिद आता है, तो अपने जूते को देख लिया करे कि कहीं उसमें नजासत तो नहीं लगी है। रास्ता चलते हुए ये इम्कान रहता है कि कहीं कोई नजिस चीज हो, तो पैर तो खराब नहीं होगा, नजिस नहीं होगा, जूते पर ही उसका असर आएगा। तो आपने कहा कि आकर के देख ले, अगर कहीं लगी है नजासत तो मिट्टी पे उसको रगड़ दे, और यही उसकी सफाई के लिए काफी है। फिर उसमें नमाज पढ़ सकता है, वो उसके लिए जायज है। तो जूते से मुताल्लिक ये सब हदीसें हैं। एक जो है तरीका ये रहा है, एक इस्तेमाल रहा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुछ और हिदायतें रही हैं। लेकिन उसके पहले, उन हदीसों को जिक्र करने से पहले, अभी हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कई कई जोड़ी जूते होते होंगे। आपके पास भी मैं समझता हूं कि कई जोड़े तो होंगे ही, और एक ही नहीं, चप्पल भी होगा, जूता भी होगा, और वो भी कई तरह के होंगे, और इस्तेमाल जो है हो रहे होंगे। तो जो शौकीन लोग होते हैं काफी लिबास वगैरह के, तो देखेंगे कि हर वक्त वो कुछ ना कुछ नया लेते रहते हैं और नया सिलाते रहते हैं। तो उनके पास जूते चप्पल की तादाद भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इस फैशन ने औरतों को बहुत ज्यादा मुतासिर किया, कि औरतों का मामला ये हो गया कि उनका जो
कपड़ा है, कपड़े को मैच करता हुआ चप्पल भी चाहिए। अब हर चीज जो है कपड़े से मैच करता हुआ उनको मिलना चाहिए। कुछ अजीब अजीब शौक लोगों ने पाल लिए हैं। अब तो हमने सुना कि घरों में भी वो मैचिंग बहुत जरूरी है, कि घर का जैसा पेंट है उसी लिहाज से सोफे भी होने चाहिए और उसी लिहाज से घर के फर्नीचर भी होने चाहिए। तो बदलते रहो, पैसे खर्च करते रहो। तो ये बहुत सारी फजूल खर्चियां इसका हिस्सा बन गई हैं, मैचिंग को लेकर के। तो खवातीन में खास तरीके से ये चीज पाई जाती है कि उनको मैचिंग कलर का चप्पल और जूता भी चाहिए। तो जैसा उनका कपड़ा है उसी को मैच करता हुआ चप्पल। तो इसकी वजह से बाज खवातीन के पास जैसे बहुत सारे कपड़े होते हैं, वैसे ही बहुत सारे जूते, हर जो है कपड़े के साथ मैच करता हुआ अलग चप्पल या जूता होगा। ये बात है। मैं असल इसको किसी और मकसद से जिक्र कर रहा था आपके सामने। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बाज लोग जिक्र करते हैं। बाज लोग क्या, ये सियर अलामुन नुबला में इमाम ज़हबी ने जिक्र किया है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कैसे उन्होंने ये सब चीजें नकल कर दी है। उनके जूते जो इस्तेमाल के जूते थे, इतनी बड़ी तादाद लिखी है कि आज के जमाने की जो फैशन अपील औरतें होती हैं और जो एक्ट्रेस है ना आज के दौर की, और मॉडल जो खवातीन जो औरतें होती हैं, उनके पास भी उतने जोड़े चप्पल नहीं होंगे जितना इमाम मालिक के बारे में लिखा है। वो भी आज के दौर का नहीं है, वो दौर है जब लोगों को खाने के लिए जो है खाना भी नहीं मिलता था, और किसी को पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, चप्पल जूता तो दूर की बात है। ऐसे दौर में जब गुर्बत का दौर था, आज के दौर की तरह की खुशहाली थोड़ी होती है। अभी चंद सालों पहले की बात है मेरे भाई, 25-30 साल पहले ही का, कोई बहुत बड़ा, बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके सामने। हमने अपने बचपन में ये देखा है कि लोगों को बड़ी मुश्किल से जो है चप्पल नसीब होता था। और साल में कोई एक चप्पल साल में अगर खरीद ले तो बहुत बड़ी बात है। वरना एक चप्पल जब खरीदते थे ना तो उसको 2-2 3-3 साल तक हिफाजत से चलाना पड़ता था कहीं आने जाने के लिए, और अक्सर तो नंगे पैर रहना पड़ता था। ये अभी बहुत करीब की बात कर रहा हूं मैं आपको। इमाम मालिक के दौर में क्या इतनी कोई मदीने में खुशहाली थी कि लोगों के पास जो है इतने कई सौ जो है जोड़े की बात है, इसलिए बात कर रहा हूँ 500 की बात। इस तरह से जिक्र किया नहीं, कुछ मुबालगे कुछ अजीब तरह के होते हैं कि तसव्वुर नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो यकीन के साथ नहीं हो सकता ये जो है। जिन्होंने भी जिक्र किया है इसको मुबालगा किया है उसको। ठीक है, वो बहुत एहतमाम करते रहे होंगे कपड़े का, जूते का, चप्पल का। एक होता है एहतमाम करना, लेकिन इतने ज्यादा उनके पास रहे तो इमाम मालिक की शख्सियत के ये खिलाफ है जो, कि इतने जोड़े चप्पल रखने के बजाय उन पैसों को सदका खैरात करने को बेहतर समझते, अपने तलबा पर खर्च करने को बेहतर समझते। आज के दौर की तरह के तो लोग नहीं थे ना वो। नेक मुत्तकी लोग क्या करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आता था वो सब अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया करते थे, और खुद जो है बहुत ही जो है सादा जिंदगी बसर करते थे। तो कहाँ ये तसव्वुर करेंगे इमाम मालिक को लेकर के इस तरह की बात जो है। तो बहरहाल ये भी एक है। तो ये एक फैशन के इसमें भी दाखिल हो गई ये चीज। और तरह तरह के चप्पल और जूते जो चंद हफ्ते और महीनों के अब चलने वाले रहते हैं और सिर्फ फैशन ही रहता है बस। इस तरह से काफी पैसे जो है लूटे जाते हैं लोगों के, और वो इस्तेमाल करना तो बहरहाल एक जरूरत है। मैं तो बार बार कह रहा हूं आपसे कि चप्पल और जूता इस्तेमाल करना एक जरूरत है, और इस्लाम ने बाकायदा इसकी हिदायत भी दी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलसल ये पहना करते थे, इसका एहतमाम करते थे। और नमाज में भी, मस्जिद में भी पहन करके दाखिल होने की तक की जो है हिदायत मिलती है, और अमल मिलता है। यहाँ तक कि जो है आप यानी उस पहले पहले वजू करने तक का भी जो है जिक्र मिलता है।
تو یہ ساری چیزیں ہیں جوتے کو لے کر کے۔ اب جو ہے جوتا کبھی کیا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جوتے کبھی راستہ چلتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے ٹو ویلر والے کبھی چلتے چلتے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا، تو پھر گھسیٹ کر کے لے کے جانا پڑتا ہے ان کو گاڑی، بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ایسے موقع پر۔ تو جوتے اور چپل کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں اگر اسٹیپنی نہ ہو اور ٹائر پنچر ہو گیا ہو تو پھر گاڑی کے چلنے کا معاملہ کیا رہتا ہے۔ تو ویسے ہی ہمارے ان دو پیروں میں اگر جوتا یا چپل کوئی ایک ٹوٹ جائے راستے میں، تو پھر کیا اس وقت شکل ہوگی آپ تصور کر لیجئے۔ پہلے ایسے بہت ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ پھٹے پرانے چپل لوگ پہنا کرتے تھے، اب تو خیر ابھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن تب تک دوسرے نئے آ چکے ہوتے ہیں، تو اب وہ پھر پرانے جو ہے وہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ اب جو ہے استعمال کے لائق نہیں مانے جاتے، ان کو پہلے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہیں تو پہلے ایسا بہت ہوتا رہا کہ راستے میں معلوم ہوا کہ چپل خراب ہو گئی، تو اب ایک چپل خراب ہو گیا اور ایک جو ہے پیر اب کا چپل صحیح ہے، تو کیا ایک پیر میں چپل پہن کر کے چل سکتے ہیں؟ چلو جو صحیح ہے صحیح ہے، اب جو خراب ہو گیا اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا کہ کہیں جو ہے موچی کی دکان ملے گی اور پیر سینے والے جو ہے جوتے سینے والے کی، تو ہم اس سے صحیح کرا لیں گے، مرمت کرا لیں گے۔ تو ایسا جو ہے اس کے بارے میں ہدایت موجود ہے حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا پہن کر کے چلنے سے منع فرمایا ہے۔ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے اس کے اوپر باب بھی باندھا ہے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے۔ تو یہ جو ہے کہ ایک جو ہے پیر میں چپل یا جوتا ہو اور دوسرے پیر جو ہے خالی ہو، ننگا پیر ہو نا، تو یہ صحیح نہیں ہے کہ آدمی اس طرح سے چلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يمشي احدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا او ليحفيهما جميعا، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایک جوتے میں نہ چلے، یعنی ایک پیر میں جوتا ہو اور ایک پیر میں نہ ہو، اس طرح سے تم میں سے کوئی نہ چلے۔ کیا کرنا چاہیے اسے؟ لِيُنْعِلْهِمَا جَمِيعًا، یا تو دونوں پیر میں جوتا رکھو، او لِيُحْفِيهِمَا جَمِيعًا، یا دونوں پیر سے جوتے نکال دو۔ تو اب میں نے کہا راستے میں ٹوٹ گیا ہو تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اب دونوں پیر میں جوتے ہوں، کیونکہ اب ایک تو ٹوٹ گیا ہو تو اس کو پہن کے چلنے کے لائق نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا کہ دوسرے پیر کا جوتا بھی نکال لیں گے اور ننگے پیر چلیں گے۔ تو دونوں میں یا تو جوتے ہونے چاہیے یا دونوں سے جوتے نکال لینے چاہیے، ایک پیر میں جوتا یا چپل پہن کر کے نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے منع کیا ہے۔ اب جو ہے ایک جو ہے بعض اس طرح کی حدیثیں بھی آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جوتا پہنے، ایک ہی جوتا پہن کر کے آپ چلتے تھے، اس طرح کی بھی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہے بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جوتے میں چلا کرتے تھے۔ تو پہلے تو اس طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے گا، کیونکہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ شکل ہو جائے کہ آپ خود ایک جو ہے جوتا یا ایک پیر میں چپل پہن کر کے جو ہے آپ چلیں گے اس طرح سے، تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جوتے میں ایک ہی پیر میں جوتا یا چپل پہن کر کے آپ چلتے رہے ہوں
ऐसा कुछ भी साबित नहीं है। तो ये एक बात थी। फिर आपने क्यों मना किया गया, क्यों मना किया? तो एक तो ये है कि ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। वही मैंने कहा, तहजीब के खिलाफ बात लगती है कि एक पैर में चप्पल है और एक पैर जो है नंगा है, और आदमी इस तरह से चले, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपने मना किया। या ये कि बाज लोगों ने इसकी इल्लत ये बयान की, रीजन ये बयान किया कि अगर ऐसा रखेंगे तो फिर पूरे तरीके से जिस्म को बैलेंस नहीं रहेगा। यानी अब जाहिर सी बात है कि एक नीचा और ऊंचा हो गया ना, एक पैर में चप्पल है और एक या जूता है, तो थोड़ा जो है वो ऊंचा हो जाएगा, और दूसरे में नहीं है तो वहां नीचा रहेगा, तो बैलेंस सही से नहीं रहेगा। बाज लोगों ने तो यहां तक भी जिक्र किया इसका रीजन बयान करते हुए कि क्यों मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि इसकी वजह से उसको दिमागी खलल हो सकता है। मैं जो है अभी बता रहा था ना कि आपको कि जो है वो जो तलवा है, पैर का तलवा जिसे हम कहते हैं, नीचे के हिस्से में जो थोड़ी सी जगह जो है वहां खाली सी रहती है, उसका डायरेक्ट असर दिमाग से रहता है। और इसका तो हम जो है तजर्बा कर चुके हैं कि वहां पर जब नींद वगैरह नहीं आती रहती है ना, तो वहां पर कुछ ठंडा सा तेल जो है करके मालिश करें, तो उसके बाद देखिए ठंडक पूरी दिमाग तक महसूस होती है उसकी। तो बाज अहले इल्म ने इसका रीजन जो बताया है, सबब बताया है कि क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया एक ही जूते या चप्पल में जो है चलने से। कहा कि ये जो है सबब बन सकता है इंसान के दिमागी खलल का, उस पे उसको चीज असरअंदाज हो सकती है। इमाम इब्नुल अरबी ने तो इसके बारे में ये बात लिखी है कि ये शैतान की चाल है, यानी शैतान इस तरह से चलता है, इसलिए हमको इससे बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, हमारे लिए तो यही काफी होता है। हम चाहे कोई इल्लत जाने ना जाने, सबब जाने ना जाने, लेकिन जब आपने मना कर दिया है तो फिर उससे मना ही रहना है, उससे रुक ही जाना है, उसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां पर भी नहीं आ जाती है किसी भी मामले में, आपने मना कर दिया है, तो फिर हमको उसका पालन करना होता है, आपके हुक्म का, आपके आर्डर का, और उसी के मुताबिक चलना होता है। और जरूर उसका कोई ना कोई नुकसान है, तभी तो शरीयत में उसे मना किया गया है। ये हमारा यकीन होता है, हमारा ईमान होता है। तो जूते से मुतल्लिक ये बात मैंने पेश की। अभी जूते से मुतल्लिक एक दो सुन्नतें हैं, उसका भी इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे, लेकिन आज के दर्स में मैं अपना दर्स यहाँ रोक रहा हूँ। आपको कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख, अरबी में नाल जूते को ही कहेंगे या चप्पल? क्योंकि हिजाव भी आता है। हाँ, हिजा। जी हाँ, हिजाउन का लफ्ज भी आता है और नाल का लफ्ज भी आता है। पुराने जमाने में ज्यादा नाल ही इस्तेमाल होता रहा। इसमें नीचे असल कुछ फर्क पड़ता था। नाल जो कहते थे ना, कि नीचे के हिस्से में जैसे घोड़े की नाल होती है ना, वैसा कुछ नीचे लगाते थे, जिसकी वजह से उसकी बड़ी हिफाजत जो है होती थी। और जमीन जो यानी रेत हो या यानी गर्म बालू या कुछ और भी चीजें जो होती थी, उससे भी उसकी बड़ी हिफाजत हो जाया करती थी। जैसे घोड़े को नाल लगाई जाती है, याद रखिए। और घोड़ा जो है ना इतना तेज दौड़ता है, जो अगर नाल ना हो तो उसका पैर खराब हो जाएगा। तो ये वो नाल ही कहते हैं उसको असल में, तो उसी से ये नाल है ये लफ्ज। तो नाल असल नीचे कुछ इस तरह की चीजें लगाई जाती थी, इसलिए उसको नाल कहा जाता था। वो चीज न लगाई गई तो फिर हिजा कहेंगे, और दूसरे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जी। आज के जमाने की तरह के जो चप्पल होते हैं ना, जिस अंदाज के, जो तरह तरह के अंदाज के, ये तो उस जमाने में नहीं होते थे जी। और
जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हाँ, वहां पर भी नाल का लफ्ज है, इसीलिए जी कहा कि ये पर लगता है कि बहुत पुराना मतलब इसका इस्तेमाल रहा है। तो उसमें भी नाल का जिक्र है बाकायदा कि फखला नाले के इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुआ। तो ये नाल का जिक्र आया हुआ है ना वहां पर। तो ये मैंने अभी इब्नुल अरबी का एक कौल नकल किया था ना कि वो तो कहते हैं ये अंबिया का लिबास रहा है जी। शेख, पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जूते निकाल के आने के लिए क्यों कहा शेख? जी हाँ, वो साथ में उसमें जिक्र किया है ना कि इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुआ, कि तुम एक मुकद्दस वादी में हो, तो यहाँ जूता पहन के ना आए। जो जूते में कुछ गंदगी वगैरह हो सकती है, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो एक मुकद्दस जगह पे जा रहे हैं, तो आप जो है उसको निकाल करके चले जाइए जी। जज़ाकल्लाह खैर। या अल्लाह। अगर अल्लाह का हुक्म है ना, हम्म। उस पर सवाल क्या? किस पे? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। जी शेख। शेख, वो ये जूते पे चलने का वो शैतान का ये बोल देना शेख, उसके ज़िम्न में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया है शेख? नहीं नहीं नहीं, शैतान ये इब्नुल शैतान अरबी हमेशा एक एक आलिम एक है। ये हाँ, इब्न अरबी जी। उन्होंने जो है ये बात जिक्र की है, जो इल्लत के तौर पर बयान किया जी। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं है निशे ये। नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं आई है। शैतान हमेशा वो एक पाँव से चलने का, नहीं उल्टे नहीं, हाथ से वैसा खाने कुछ का। नहीं। जी जी हाँ, जी, पानी पीने उल्टे का। हाथ जी से खाने का तो है हदीसों में। जी जी। हाँ, ये पूरा नाम क्या है शेख इब्न अरबी का? ये है इब्न अरबी इब्नुल है। अरबी का पूरा नाम जहन में नहीं है, लेकिन ये इब्नुल अरबी इब्नुल एक, अरबी। हाँ, इब्नुल इब्नुल अरबी अरबी। एक मालिकी जो है जी बड़े सर। मशहूर आलिम गुजरे हुए हैं। असल में ये एक इब्ने अरबी होते हैं, वो एक सूफी हैं। ये इब्नुल अरबी हैं, ये सूफी नहीं, ये मालिकी जो है बड़े आलिम अच्छा, गुजरे हुए हैं जी हाँ, मालिकी तो मजहब के सिर्फ बड़े अलिफ आलिम। अलिफ लाम का फर्क है। हाँ, अलिफ लाम के फर्क से ही पहचाना जाता है जी दोनों जी को। जी, इब्नुल इब्ने अरबी इब्नुल जब अरबी। कहते हैं तो वो सूफी होते हैं। हाँ हाँ ये हाँ। इब्नुल अरबी जब कहते हैं तो ये मालिकी, मालिकी हाँ, मालिकी जो जवाब। है, हाँ, बड़े मशहूर फकीह गुजरे हुए हैं, जिन्होंने जामे तिर्मिजी की शरह लिखी है जी। सर, ये जूतों पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, वजू भी कर लिया करते थे आपने फरमाया, क्या जी, कैफियत शेख? जूते पहने जब हुए पैर होते धोने थे के तो जो है उसमें, तो तो क्या होता था कि जूता निकाला और हाँ उसको धो लिया उसी को जो है, और हाँ, अगर फिर वो पहन लिया। साक्स साक्स होते थे ना, तो वैसे ही मसा मसह कर कर लिया करते थे जी मसा। हाँ। हम्म, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो आज का हम दर्स फिर अब सवाल नहीं है तो यहीं पे खत्म करते हैं, हमें थोड़ा सा एक काम है तो इसलिए एक पाँच जी दस सर मिनट जरूर। पहले कहीं जाना चाह रहा हूँ। तो जी सर। जी, आज का दर्स यहीं पर खत्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।